Hello students, today we start the new topic, new unit, solution. We take one by one the topic of this unit. First of all, what is solution? A solution is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reactive substances whose composition can be varied within a certain limits. In this topic, we take binary solution. What is binary solution? In which the one solute is dissolved in one solvent. Solution is made of solute plus solvent form the solution. Okay, uh, if in a glass of water we add NaCl, any salt, then it is called the solid is NaCl, which is in small in concentration, and solvent is water. And if solvent is water, then it is called the aqueous solution. Aqueous solution. Okay, or if the solvent is not the water, then it is called the non-aqueous solution. Next, types of solution. Types of solution. Solutions go according to solvent and solute. We have divided solution in 9 types. We take one by one. First, ये हमारे पास में हो गया सीरियल नंबर, सॉल्यूट, solvent, an example. Okay, one है, if solute is solid and solvent is always also the solid, then it is called solid in solid, and the example is alloys. Alloys, जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल है एलोय का ब्रास. ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर प्लस जिंक. ओके, इन विच कॉपर इज अ सॉल्यूट एंड जिंक इज अ सॉल्वेंट. डिपेंड करेगा कि किसकी परसेंटेज जो है वो कम है तो वो हो जाएगा सॉल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो हो जाएगा हमारे पास में सॉल्वेंट. नेक्स्ट है, इफ़ सॉल्यूट इज लिक्विड and the solvent is solid, the type is liquid in solid, and the example is hydrated salts. Hydrated salts. एग्जाम्पल हो गया हमारे पास में कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O. देखिए कॉपर सल्फेट जो है सॉलिड है, इट इज़ अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट्स. इट इज़ द टाइप वन, इट इज़ द लिक्विड इन सॉलिड टाइप. थर्ड है, solute तो है गैस and the solvent is solid, and it is called gas in solid. The example is dissolved gases, dissolved gases in minerals. और क्या एग्जाम्पल हो गया? H2 गैस इन पैलेडियम और निकल. ये एग्जाम्पल्स हो गए, H2 गैस इन पैलेडियम एंड निकल. नाउ द फोर्थ इज अगेन इफ solid is solid and the solvent is liquid. Okay, it is called solid in liquid. The example is very well known example है salt or glucose in water. Okay, fifth है liquid in solid, liquid in liquid. यदि सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है तो इट इज़ कॉल्ड लिक्विड इन लिक्विड. और द एग्जाम्पल इज मिथेनॉल और इथेनॉल इन वाटर. ओके, सिक्स्थ है गैस इन लिक्विड. गैस इन लिक्विड एग्जाम्पल हो जाएगा एरेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, और O2 इन वाटर. हम जो कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं उनमें गैस जो होती है, नाइट्रोजन गैस जो होती है वो प्रेशर के साथ में फिल करी होती है, और जो सॉल्वेंट है वो क्या है हमारे पास में? लिक्विड है. नेक्स्ट है
Now again solute is solid and the solvent is gas. So it is called solid in gas. The example is iodine vapors in air. और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके? कैम्फर इन N2 गैस. नेक्स्ट 8th, लिक्विड इन गैस. लिक्विड, जहाँ पर लिक्विड तो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट जो है वो गैस है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास में ह्यूमिडिटी इन एयर. ह्यूमिडिटी इन एयर इज द बेस्ट एग्जांपल, और क्लोरोफॉर्म मिक्सड इन एयर इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस. नेक्स्ट 9th, when solute is gas and the solvent is also the gas, the example is air, O2 plus N2, gas in gas. It is a 9 type of solutions in which if the solid is the solvent, then it is called solid solution. If liquid is a solvent, then it is called liquid solution. If gas is the solvent, then it is called the gaseous solutions. Now the next topic is expressing concentration of solution. हम किसी भी solutions के अंदर उसकी concentration को किस किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं वो हम यहाँ स्टडी करेंगे. यही टॉपिक जो है हमने +1 क्लास के अंदर भी स्टडी किया था, यूनिट 1 के अंदर, जहाँ पर हमने पढ़ा था परसेंटेज, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन. ये सारे टॉपिक जो है हम ऑलरेडी +1 में पढ़ चुके हैं, हम इसको यहाँ पर रिपीट करेंगे और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. We can express the concentration in different form. The first form is percentage. Percentage. Okay. The percentage of a solution is usually expressed either as percentage by mass or percentage by वॉल्यूम. इट इज़ कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम. देखिए हम किस किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. द फर्स्ट इज़ W बाय W, परसेंटेज. वेट बाय वेट, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास में, मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100. ये है वेट बाय वेट या मास बाय परसेंटेज बाय मास है. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी से 10 ग्राम ऑफ Na2CO3 sodium carbonate present in 100 gram of the solution. तो यदि हम इसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं, बाय मास निकालते हैं, तो हमारे पास में आएगा 10/100 मल्टीप्लाई 100, हो जाएगा हमारे पास में 10%. It is a 10% solution of Na2CO3 मास बाय मास या वेट बाय वेट, जिसे हम बोलते हैं परसेंटेज बाय मास. ओके. और इफ़ वी से द सेकंड टर्म इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज. ओके. यदि हम ऐसा करते हैं, 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट present in 100 ml of the solution, then the formula is mass of solute upon में volume of solution multiply 100. mass of solid is 10, volume of 100 multiply में 100, it is 10%, but it is by volume, percentage by volume है और it is percentage by mass. The next term is volume by volume percentage. If I say 10 ml of ethanol present in 10 ml of ethanol present in 100 ml of solution, then volume by volume, volume of solute
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100. सो 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू 10%. Okay, in different terms of percentage, W by W percentage, W by V percentage, volume percentage and volume by volume percentage. ज़्यादातर केसेस के अंदर हम लोग यहाँ पर W by वॉल्यूम पढ़ते हैं, जिसमें कि जो सॉल्यूट का मास जो है वो तो हो गया हमारा, हमने वेट में लिया, मास के फॉर्म में लिया है, और वॉल्यूम जो होगा वो हमने सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है हम उसको लीटर के अंदर लेते हैं या फिर ml के अंदर लेते हैं. नेक्स्ट है मोलरिटी. Molarity. It is expressed by capital M. And what is molarity? Number of molarity से पहले हमें एक पॉइंट पढ़ना है. इट इज़ स्ट्रेंथ. पहले हम स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, उसके बाद में मोलरिटी. व्हाट इज स्ट्रेंथ? इट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ द सोल्यूशन इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ. व्हाट इज स्ट्रेंथ? अमाउंट of solute dissolved or present in 1 liter of the solution is called the strength. It is expressed in gram per liter. यानी कि it is amount of solute in grams. If I say 5 gram NaCl present in 500 ml of solution, the strength is 5 upon 500 multiply 1000. 1000 से मल्टीप्लाई क्यों करा है यहाँ पर हमने? क्योंकि ये ml में है, हमें इसे लीटर में चेंज करना है. यदि हम इसके निकालते हैं तो ये होगा 10 ग्राम पर लीटर. यानी कि इसके स्ट्रेंथ क्या हो गया हमारे पास में? 10 ग्राम पर लीटर. अब नाउ द पॉइंट इज मोलरिटी. What is molarity? It is the number of moles of the solute present 1 liter of the solution, and it is called the molarity. ठीक है. अब व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते थे, ये भी हमने प्लस 1 में पढ़ रखा है. इट इज़ द मास अपॉन में मोलर मास. यदि हमें गिवन मास है, फॉर एग्जांपल हम इसी क्वेश्चन में देखें, हमने बोला 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 500 ml. यदि हमें इसी की मोलरिटी निकालनी है तो हमें पहले इसको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. मोल्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे? हमें इसका मास, गिवन मास, और NaCl का क्या लेना पड़ेगा? मोलर मास. उसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आएंगे नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम n से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स. व्हाट इज द डेफिनेशन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड द मोलरिटी. हम इसकी फॉर्मूला लिखते हैं. Number of moles of solute, M equals to number of moles of solute volume of solution in liters. ओके. और नंबर ऑफ मोल्स कैसे काउंट करते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स n है हमारे पास में. इट इज़ द मास अपॉन में मोलर मास. मास को हम यदि W से दिखाते हैं और मोलर मास को हम कैपिटल M से दिखा रहे हैं. ओके. नाउ वी टेक अ क्वेश्चन. इफ 4.9 ग्राम H2SO4 dissolved in 4.9 gram H2SO4 dissolved in 500 centimeter cube of the solution. How can we find out the molarity? पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे? मोल्स. 4.9 अपॉन में H2SO4 का यदि हम मोलर मास निकालते हैं तो H2SO4 जो है
हाइड्रोजन का होता है 2 प्लस 32 प्लस 64, तो इट इज़ 98। तो हम 4.9 अपॉन में हमने किया 98, इससे तो हमारे निकल जाएंगे मोल्स निकल जाएंगे, और फिर हम इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास में आ जाएगा आंसर। या फिर हम इसको सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं, 4.9 अपॉन में 98 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में 500। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ गया 1/10 इक्वल्स टू 0.1 मोल। इसकी मोलरिटी जो आ गई वो आ गई 0.1। ओके, देखिए जो मोलरिटी का फॉर्मूला जो हमारा बन रहा है वो ऐसा है, इफ़ आई एम सेइंग ए ग्राम ऑफ solute dissolved in V ml of solution, then the formula is A upon में m. A is the mass of the solute, it is molar mass, multiply 1000 upon में V. इससे पहले वाले पॉइंट में हमने स्ट्रेंथ पढ़ा था. व्हाट इज स्ट्रेंथ? इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन V ml of the solution. Then we can also write the molarity equals to strength in ग्राम पर लीटर अपॉन में मोलर मास. ओके, स्ट्रेंथ A अपॉन में V जो है इट इज़ अ स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर अपॉन में हो गया मोलर मास, और वी कैन से स्ट्रेंथ इक्वल्स टू मोलरिटी मल्टीप्लाई में मोलर मास. Okay, clear? Now the next point, molality. It is expressed by small m. What is molality? Molality of a solution is defined as the number of moles of the solute dissolved in 1000 grams or 1 kg of the solvent. Okay, हमें इसकी हम मैथमेटिकली लिखते हैं. m इक्वल्स हो जाएगा नंबर ऑफ moles of the solute upon में mass of the solvent in kg. Okay, number of moles of the solute, mass of the solvent in kg. If I say a gram of solute dissolved in B gram of solvent, then the formula will become m equals to A upon में molar mass multiply 1000 upon में B. We take example, if 1.325 gram सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3 का मोलर मास होता है 106 ग्राम. ओके, डिजॉल्व इन 1.325 ग्राम Na2CO3 डिजॉल्व इन 250 ग्राम्स ऑफ वाटर, then the molarity equals to 1.325 divided by 106 multiply 1000 डिवाइडेड बाय 250. इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी मोलरिटी, ये आएगी 0.05 मोल पर केजी. The next point is normality. What is normality? It is the number of gram equivalents of solute dissolved per liter of the solution is called the normality, and it is expressed by capital N. It is expressed by capital N. Okay, so N equals to number of gram equivalent, number of gram equivalent
ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. Okay, so how can we calculate number of gram equivalent? The formula for calculating the number of gram equivalent, we have to calculate equivalent mass. Equivalent mass. अब equivalent mass कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास में equivalent mass निकालने का. इफ मुझे कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, यदि मुझे किसी एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो हम फॉर्मूला लिखेंगे मोलर मास अपॉन में बेसिसिटी. व्हाट इज बेसिसिटी? इट इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन प्रेजेंट इन एसिड. जैसे फॉर एग्जांपल HCl के अंदर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन कितने हैं? 1 है. तो इसकी बेसिसिटी कितनी है? 1. इट मीन्स द इक्वल मास ऑफ HCl इज, मोलर मास कितना है HCl का? 36.5 अपॉन में 1. तो इसकी मोलर मास और इक्वल मास होता है वो सेम होता है. यदि मुझे H2SO4 का इक्वल मास निकालना है तो इसका मोलर मास होता है 98 और नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन कितने हैं? 2 हैं. तो हमने 2 लिखा है यहाँ पर. तो इसका इक्वल मास कितना आ गया? 49. इस तरीके से किसी एसिड का इक्वल मास निकालते हैं. यदि हमें किसी बेस का निकालना है तो बेस में के लिए फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास में मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी. मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी. व्हाट इज एसिडिटी? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन. जैसे फॉर एग्जांपल NaOH है. NaOH में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन कितने हैं? 1 है. तो इसका इक्वल मास कितना होगा? मोलर मास, NaOH का मोलर मास होता है 40 डिवाइडेड बाय 1. तो मोलर मास और इक्वल मास जो है वो सेम है. यदि मुझे किसी और का निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे AlOH थ्राइस का निकालना है, तो यहाँ पर इसमें रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन कितने हैं? 3 है. तो इसका मोलर मास लिख के और डिवाइड बाय हमें 3 करना होगा. यदि मुझे किसी सॉल्ट का निकालना है, सॉल्ट, तो यदि हम सॉल्ट का निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे? मोलर मास ऑफ द सॉल्ट हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ द मेटल एटम्स. जैसे एग्जांपल लेते हैं FeCl3. हम इसका पहले मोलर मास निकाल लेंगे. हमने मोलर मास लिखा है यहाँ पर और इसमें Fe के ऊपर कितनी टोटल पॉजिटिव वैलेंसी है? 3+. तो हम क्या कर देंगे? डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे. तो वो उसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल यदि मुझे निकालना है Al2SO4 थ्राइस का मुझे इक्वल मास निकालना है, तो यहाँ पर पॉजिटिव मेटल एटम कौन सा है? एल्यूमिनियम है. चार्ज कितना है? 3+ है. और कितने हैं? 2 है. तो हमें इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 6 से डिवाइड करना पड़ेगा. इस तरीके से हम यहाँ पर इसका इक्वल मास निकालते हैं. और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का तो पूरा कंप्लीट फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास में? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मास अपॉन में मोलर मास, इक्विवेलेंट mass. So the complete formula of normality is, if a gram of solute dissolved in V ml of solution, तो A अपॉन में इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में V. ओके. एंड वी ऑल्सो नो A अपॉन में V क्या होता है? इट इज़ अ amount of solute in grams upon my volume of the solution. Then it is strength. So we can also write normality equals to strength in gram per liter upon में equivalent mass. Normality equals to strength in gram per liter upon में equivalent mass और strength equals to जाएगा normality मल्टीप्लाई में इक्विवेलेंट मास. इससे पहले हमने निकाला स्ट्रेंथ इक्वल्स टू मोलरिटी
मल्टीप्लाई में मोलर मास. Okay, or if I say normality equals to molarity multiply molar mass upon में equivalent mass. Now the next point is mole fraction. Mole fraction. What is mole fraction? Mole fraction of a component is the fractional obtained by dividing number of moles of that constituent by the total number of moles of all the constituent present in the solution, and it is denoted by small x. इसको हम स्मॉल x से रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए, यदि हमारा सॉल्यूशन है वो दो कंपोनेंट का बना हुआ है. हमने बोला कंपोनेंट A and component B. It may be solid, it may be solvent. Then the moles of component A is Na and component B is Nb. यदि मुझे कंपोनेंट A के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना तो मैंने लिखा x A इक्वल्स टू हो जाएगा Na अपॉन में Na प्लस Nb, मतलब कि उस कंपोनेंट के मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स. यदि मुझे कंपोनेंट B के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ये हो जाएगा Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, and the mole fraction XA plus XB equals to 1. So if I know XA, then we can calculate XA XB by 1 minus XA. Okay. Next is mass fraction. Mass fraction is defined as the mass of the given component per unit mass of the solution. देखिए, यदि हमारे पास में सेम हम ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं. यदि A और B दो कंपोनेंट है, इसका मास WA है, इसका मास WB है, तो यदि मुझे मास फ्रैक्शन निकालना तो मैंने लिखा XA इक्वल्स टू WA अपॉन में WA प्लस WB और XB इक्वल्स टू WB अपॉन में WA प्लस WB. Okay. Now the next point is parts per million. It is ppm, parts per million, ppm. What is parts per million? It is used for very dilute solutions. When a very small quantity of solute is present in a large quantity of the solvent, then we take this concentration term ppm, parts per million. It is defined as a mass of the solute present in 1 million 10 to the power 6 parts by mass of the solution. So ppm equals to mass of A upon में mass of solution multiply 10 to the power 6. The pollution of the atmosphere is also reported in ppm, and it also the in water fluoride concentration, copper concentration is also reported in ppm, in which the जो solute concentration is very low. Now all the concentration terms is completed. In the next video we will discuss the different numericals of this topic. Thank you.